discuss about pancreas, mainly the endocrine part of the pancreas. I am Dr. Naulita Gangwani from Department of Physiology. Next. So this diagram is mainly showing the position of the pancreas where it is present in the body. The yellow color organ is shown here is the pancreas, and the structure present surrounding it and slightly above it is duodenum. Now this duodenum is the part of small intestine and pancreas is present behind it. Now as you can see, the pancreas is divided into four parts: head, neck, body and tail. So pancreas is a triangular gland which has both the exocrine and the endocrine cells, and it is also located behind the stomach and near the duodenum. Now the acinar cells produce an enzyme-rich juice which is used for digestion. This is the exocrine part. So exocrine part is mainly involved in digestion of food and it produces an enzyme-rich fluid. Now the endocrine part is the part which produces hormones, and this is mainly pancreatic islets or islets of Langerhans. Next. So here again we can see the pancreas. Above is the stomach, then it is continuing it into duodenum, and behind these we have the presence of the pancreas, that is the triangular structure. In the center we can see a green colored duct, that is the main pancreatic duct of Wirsung, flowing in the pancreas, passing out through the pancreas, which is opening in the duodenum. Now near these duct, there are acinar cells present which release digestive enzymes, denoted by the blue color arrows. Then pink color part where the purple color dots are shown is the endocrine portion of the pancreas, mainly consisting of the islets of Langerhans. And as you can see, these islets of Langerhans are more near the tail region of the pancreas, and they are also situated away from the pancreatic duct. Now these will produce hormones like insulin and glucagon, which you can see enters into the blood. So hormone, is, as you know, is any protein or any product which is produced by the endocrine part, endocrine gland, and is released in the blood to reach their target tissues. Here also it is shown the pancreas and surrounded by duodenum. Next. Now the endocrine pancreas is composed of a nest of cells which is known as islets of Langerhans. There are more than 1 million islets of Langerhans in human pancreas, and they mainly consist of different types of cells. Now more than 70% are the beta cells. So here different types of islets are shown. Alpha cells, many different types of cells in the islets of Langerhans. Alpha cells, beta cells and the delta cells. So you have to remember that insulin is produced from the beta cells and glucagon is produced from alpha cells. So in this table, all the four types of cells which are present in the islets are written. A cells or the alpha cells, B cells or the beta cells, D cells for the delta cells,
and PP cells or the pancreatic polypeptide cells. Now these alpha cells are less than 20% and they release the hormone glucagon. Beta cells are 80% and they release the hormone इंसुलिन. सो आपको सिर्फ ये मेन हार्मोन के नाम याद रखने. ग्लूकागॉन अल्फा सेल से आता है, इंसुलिन बीटा सेल से. जो डेल्टा सेल्स हैं वो सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो रिलीज करती हैं और पीपी सेल से पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. ये जो सोमैटोस्टैटिन होता है वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर होता है. Now, islets of Langerhans are shown in this, surrounded by pancreatic acini. Now, these pancreatic acini will produce pancreatic juice, which is responsible for digestion. And the islets mainly have the alpha cell, beta cell, delta cell, and the PP cell. And as you can see in the diagram, the beta cell are maximum, which release insulin. So insulin, now the insulin is a large polypeptide. Mainly it has two chains, A chain and B chain. So A chain contains 21 amino acid and B chain contains 30 amino acid, and these chains are linked by disulfide bonds. Next. So DNA converts into mRNA. Now this insulin is present initially in the form of pre-proinsulin, which is converted into proinsulin, and finally we have insulin. So this diagram is of the proinsulin, where green color is the A chain, orange color is the chain B. And these both chains are also connected with the help of chain C or the C peptide. So when this proinsulin converts into insulin, we have A and B chain linked together, that is the insulin, plus C peptide. Next. C peptide connects A chain and the B chain, and it is retained in granules. It has no biological activity, but it is released in equimolar ratio with insulin. मतलब जितना इंसुलिन होगा उतना ही सी पेप्टाइड होगा, क्योंकि प्रो इंसुलिन में ए, बी और सी पेप्टाइड होता है, और जब उसमें से सी पेप्टाइड अलग होता है तो ए और बी चेन जुड़ी रहती हैं जो कि इंसुलिन होती है. तो अगर हमें किसी बीटा सेल की एक्टिविटी को पता करना है, so by knowing the C peptide concentration, we get to know about the B cell, beta cell activity, और ये mainly diabetics patient में useful होता है. Now insulin के regulators क्या क्या हैं? तो इंसुलिन का रिलीज कब होगा? अगर ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई है. So insulin is the only hormone in the body which regulates hyperglycemia. तो बॉडी में कभी भी ग्लूकोज की लेवल बढ़ेगी तो इंसुलिन तब रिलीज होगा, और सिर्फ इंसुलिन ही ऐसा हार्मोन है जो हाइपरग्लाइसीमिया को रेगुलेट करता है, मतलब ज्यादा ग्लूकोज को रेगुलेट करता है. इसीलिए अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है या फिर सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती तो पर्सन को डायबिटीज हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है. अब बाकी के स्टिमुलेटर्स क्या हैं? अगर अमाइनो एसिड बढ़ जाए, फ्री फैटी एसिड बढ़ जाए, कीटोन बॉडीज बढ़ जाए, कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे जीआईपी, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन, ये सब, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टिमुलेशन मतलब एसिटाइलकोलिन, ये सब इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं. अब इंसुलिन का रिलीज कम कब होता है? मतलब जो इनहिबिटर्स हैं इंसुलिन के रिलीज के, वो क्या है? जब ग्लूकोज कम हो जाएगा तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा.
अमाइनो एसिड्स अगर कम हो गए, फ्री फैटी एसिड्स कम हो गए, फिर हार्मोन्स लाइक सोमैटोस्टैटिन एंड एपिनेफ्रिन एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सब इंसुलिन के फंक्शंस क्या होते हैं? ग्लूकोज का अपटेक कराता है मसल और एडिपोज टिश्यू में, मतलब बिना इंसुलिन के बॉडी जो है, मतलब जो हमारी बाकी मसल्स में सेल्स हैं, ये ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। फिर ये स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का कन्वर्शन इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की स्टोरेज में। प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, एनाबॉलिक हार्मोन है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लाइक फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, इसको रोकता है। लाइपोलाइसिस को रोकता है, मतलब लिपिड के ब्रेकडाउन को भी रोकेगा। तो इसमें इंसुलिन के फंक्शंस दिखाए हैं। ब्रेन पे अगर ऐड करता है तो वो हंगर को बढ़ाता है और ग्लूकोज की प्रोडक्शन और लाइपोप्रोटीन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेगा। पेरिफेरल मसल में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा रहा है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस बढ़ा रहा है, मसल का मास बढ़ा रहा है और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को भी बढ़ाता है। लिवर में ऐड करता है तो ग्लूकोज की सिंथेसिस को कम करेगा, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बढ़ाएगा, लिपिड की सिंथेसिस बढ़ाएगा तो लिपिड एक्यूमुलेशन होगी, इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ा देता है। एडिपोज टिश्यू में भी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, लाइपोजेनेसिस मतलब लिपिड की फॉर्मेशन बढ़ाएगा और लिपिड्स के ब्रेकडाउन को कम करेगा, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा और मैक्रोफेज में कन्वर्जन जो होता है वो बढ़ा देता है। तो ओवरऑल इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज की लेवल को उसको कम करना है। तो किसी भी तरीके से जिससे ग्लूकोज की लेवल कम हो सके वो वाली चीजों को स्टिमुलेट करेगा। तो अब बॉडी में ये सब जो है स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, ये सब कंप्लीटली इंसुलिन पर ही डिपेंडेंट है ताकि ग्लूकोज का अपटेक हो सके। लेकिन ब्रेन जो है, किडनी, आरबीसीज, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ये लोग इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है। ये ऑर्गन्स, ब्रेन, किडनी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और रेड ब्लड सेल्स डू नॉट डिपेंड ऑन इंसुलिन फॉर ग्लूकोज अपटेक। तो इनका ट्रांसपोर्टर जो है ग्लूकोज का, वो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता और बाकी जगहों पे इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करता है ग्लूकोज का अपटेक। अब ग्लूकागॉन सिंथेसिस, तो ग्लूकागॉन जो होता है वो भी प्रोग्लूकागॉन से बनता है। देन अब इसमें मेनली ये अल्फा सेल्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं पैनक्रियास की। अब ये ग्लूकागॉन जो होता है वो इंसुलिन के ऑपोजिट इफेक्ट होते हैं, पर इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकागॉन के रिलीज को इनहिबिट करता है और जो ग्लूकागॉन है वो स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के रिलीज को। नेक्स्ट, तो ग्लूकागॉन सिक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकागॉन का काम क्या है? इंसुलिन का ऑपोजिट। तो ग्लूकागॉन जो है वो बॉडी में ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाता है। तो इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो अगर ग्लूकोज ऑलरेडी ज्यादा है तो वो इनहिबिट कर देगा ग्लूकागॉन के रिलीज को। फिर फैटी एसिड्स और कीटोन्स जो होते हैं वो भी इनहिबिट करते हैं ग्लूकागॉन सिक्रीशन। और गाबा भी बोलते हैं कि ग्लूकागॉन रिलीज को इनहिबिट करता है।
Now the catecholamines मतलब epinephrine और norepinephrine and cortisol stimulate glucagon release. इफेक्ट्स क्या है? मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, इंसुलिन के एक्शन को बिल्कुल काउंटर करता है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, और ये मेनली ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करेगा, और ग्लूकोज जब कम हो रहा है तो रिलीज हो रहा है तो ये बढ़ा देगा, तो हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट को बढ़ाएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का, उसका ब्रेक डाउन कराएगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, मतलब नया ग्लूकोज बनाएगा। तो बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट्स हैं इंसुलिन के। फैटी एसिड की भी ऑक्सीडेशन करा रहा है, और कीटोजेनेसिस नया कीटोन फॉर्मेशन जो होता है वो करा रहा है, सो दैट अगर ग्लूकोज नहीं है तो ब्रेन कीटोन बॉडीज को यूज कर सकते। में ब्रीफ में दिखाया है कि अगर मान लो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, बॉडी में ग्लूकोज कम हो रहा है, या फिर कोई हार्मोन है जैसे गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड या कुछ अमाइनो एसिड्स वो ऐड करते हैं अल्फा सेल पे, वहां से रिलीज होता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन ब्रेन पे ऐड करेगा, और वहां पे मेनली वो सटाइटी मतलब सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग कराएगा, और फूड इनटेक और एपेटाइट को कम कर देगा। पैनक्रियास में जाएगा तो इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाएगा। लिवर में क्या करेगा? लिवर से उसने ग्लूकोज के आउटपुट को बढ़ाना है, तो ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो लिवर में है वो कम कर रहा है ताकि बाकी सेल्स यूज कर सके। लिपिड का ब्रेकडाउन बढ़ा देगा, लिपिड की प्रोडक्शन कम कर देगा, कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन बढ़ा देगा, और अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन को भी बढ़ा देगा। तो बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट है इंसुलिन के। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में भी एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट बढ़ा देगा। नेक्स्ट, अब ग्लूकोज की रेगुलेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ग्लूकोज एक एसेंशियल फ्यूल है ब्रेन के लिए। अगर बहुत देर तक हाइपोग्लाइसीमिया हो तो ब्रेन की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल ग्लूकोज जो होता है वो 60 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। सो अगर 60 से कम है ग्लूकोज उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, और अगर ये बहुत देर तक रहता है तो ब्रेन डेथ हो सकती है। Then it is a major source of energy formation through TCA cycle and HMP shunt. तो अल्टीमेटली इनसे ATP बनेगा, और वो एनर्जी वो ATP से बाकी की सेल्स और बाकी के चैनल्स होते हैं वो वर्क करते हैं। इसीलिए ग्लूकोज रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए हमारे पास मेनली दो मेन हार्मोन है। तो अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा हो तो इंसुलिन चाहिए, और अगर हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज कम हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास 4 हार्मोन्स होते हैं मेनली: ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, कैटेकोलामीन्स एंड ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट, अब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की वैल्यूज, मतलब अगर आप पेशेंट को बोलते हो 8 आवर्स फास्टिंग करने के लिए, उसके बाद वो सुबह आता है तो आप फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेते हो, फिर उसके बाद वो खाना खाता है या 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देते हो, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद आप उसकी लेवल चेक करते हो, उसको हम बोलते हैं पीपी लेवल या पोस्ट परैंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर 2 आवर्स। तो अगर पेशेंट नॉर्मल है तो उसकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 60 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और उसकी पीपी वैल्यू जो होगी वो लेस देन 140 होगी।
अगर उसकी वैल्यूज इम्पेयर्ड होती है या वो प्री डायबिटिक है तो उसमें फास्टिंग वैल्यू जो होगी वो 100 to 125 बोल सकते हो, और जो पोस्ट प्रांडियल लेवल होती है वो 140 से 200 जो होती है वो होती है। डायबिटिक्स में अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 से ज्यादा या बिल्कुल उसके बराबर होगी, और पोस्ट प्रांडियल लेवल उसकी 200 या उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो मोर देन इक्वल टू 200। और किसी पेशेंट का आप अगर रैंडम ब्लड शुगर मतलब दिन में किसी भी वक्त अगर आप चेक करते हो और उसकी ब्लड ग्लूकोज 200 या उससे ज्यादा होती है, कभी भी 2 बारी 24 आवर्स अपार्ट, देन द पर्सन इज सेड टू बी डायबिटिक। मतलब अगर पर्सन या पेशेंट जैसे आज शाम को आया 4 बजे, आपने उसकी ग्लूकोज लेवल टेस्ट करी और वो 200 से ज्यादा थी, अब वो अगले दिन आता है फिर से शाम को 4 बजे, मतलब 24 घंटे बाद फिर से आप चेक करते हो, तब भी उसकी ग्लूकोज 200 से ज्यादा होती है, तो वो पर्सन डायबिटिक होता है। नेक्स्ट, तो अगर बॉडी में ग्लूकोज कम हो गई तो वो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, वहां से ग्लूकागॉन रिलीज होता है अल्फा सेल से, वो लिवर पे जाएगा, लिवर से ग्लूकोज बनेगा और वो ब्लड में पहुंचेगा और नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज हो जाएगी। जो पर्पल कलर के एरोस हैं लेफ्ट साइड में वो ये बता रहे हैं। अब जो राइट साइड में ब्लू कलर के एरोस हैं वो बता रहे हैं कि अगर ब्लड में ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हो गई तो वो पैनक्रियाज पे एक्ट करता है, पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है जो कि जाता है फैट सेल्स वगैरह में, वहां से ग्लूकोज का अपटेक होगा, लिवर में भी जाएगा, अपने सारे एक्शंस प्रोड्यूस करेगा और अल्टीमेटली बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो 2 तरह के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि जो पैनक्रियाज है वहां से इंसुलिन जो है वो कम रिलीज हो रहा है, डिक्रीज इंसुलिन रिलीज इन दी ब्लड वेसल्स, तो ग्लूकोज की लेवल जो होती है वो बढ़ जाती है, और जो मसल्स हैं वो ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाते क्योंकि इंसुलिन नहीं है, और मसल्स को ग्लूकोज यूज करने के लिए इंसुलिन चाहिए। सो इस वजह से डायबिटीज हो जाएगा या ब्लड शुगर जो भी वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, जो पैनक्रियाज है वो तो प्रॉपर इंसुलिन बना रही है, तो हमारे ब्लड में इंसुलिन नॉर्मल है, पर ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ गई क्योंकि मसल्स जो है वो ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रही ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इसमें फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ओबेसिटी या कोई और फैक्टर जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, मतलब पैनक्रियाज तो इंसुलिन बना रहा है पर हमारी बॉडी उस इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इसलिए ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी और इसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, जो कि मोस्ट कॉमन होता है और एडल्ट्स में होता है। नेक्स्ट, तो डिफरेंस क्या है, टाइप 1 जो है वो यंग ऑनसेट है 35 ईयर से पहले, उसके बाद अगर होता है तो ओल्डर ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो हम टाइप 2 डायबिटीज एडल्ट वाला होता है, टाइप 1 में रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स होते हैं, टाइप 2 में कोई ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होते अर्ली स्टेज में,
टाइप 1 में पेशेंट जो है वो नॉन ओबीस है, टाइप 1 में नॉन ओबीस है, टाइप 2 में ओबीस मतलब मोटा होता है। टाइप 1 में पैनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। टाइप 2 में इंसुलिन सिक्रीशन तो नॉर्मल है, पर जो बॉडी की सेल्स हैं वो रेजिस्टेंट है इंसुलिन के लिए। तो टाइप 1 में तो आपको इंसुलिन ही देना पड़ेगा, डाइट और एक्सरसाइज कंट्रोल। टाइप 2 में आप ओरल मेडिकेशंस दे सकते हो, इंसुलिन के इंजेक्शंस भी चाहिए होते हैं किसी को। डाइट और एक्सरसाइज कंट्रोल। मेनली सिम्टम्स में आपको 3 सिम्टम्स याद रखने हैं, ट्रिपल पी, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। मतलब प्यास ज्यादा लगेगी, भूख भी ज्यादा लगेगी और यूरिन भी ज्यादा आएगा। इसके साथ वेट लॉस भी होगा। नेक्स्ट